Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am शेषपाल चौहान। प्यारे बच्चों, मैं आज बीए पार्ट 1 के सेमेस्टर 1 की जो बुक है प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी लिटरेचर एंड लैंग्वेज 2 की एक्सरसाइजेज में जो ग्रामर है, लेसन्स के एंड पे जो ग्रामर होती है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ आप सबके सामने। तो पेज नंबर 12 एंड 13 पिजन्स एट ब्रेकफास्ट। तो पिजन्स एट ब्रेकफास्ट के जो पेज नंबर 12 एंड 13 है, 12 और 13 पेज पे जो ग्रामर है वो मैं आप सबके सामने डिस्कस करूँगा। तो लेट्स बिगिन। शुरू में 3-4 वर्ड्स ये ट्रांसक्रिप्शन के हैं, ये देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड इज WORTH। द वर्ड इज वर्थ। वर्थ, ये दिस इज वा साउंड, W ही लिखा जाता है फोनेटिक्स में। जब आप इसको फोनेमिक सिंबल के रूप में यूज करते हो W, तो ये वा साउंड ही होती है। और दिस इज लॉन्ग साउंड ऑफ अ। जब O is followed by I is followed by R, then this sound is written worth. This is tha sound. Second word is JERK. The word is jerk. इसमें भी E के बाद R आया हुआ है, तो ज, this ja sound, then long sound of a, and ra will not be pronounced because the sound ra is followed by ka sound, consonant sound. This is jerk. Third word is GREASE. It will be pronounced as grease. G, this is ga sound, then R, this is long sound of E, then sa sound. Grease. Fourth word is ABUSE. The word is abuse. Abuse. This weak sound of a, then ba sound. Primary stress will be laid on ba sound, then this ya sound, then long sound of u. Use. This za sound. All right. Okay. Now on 12 page we have the sentence. What is the sentence? Sentence क्या होता है? What is the definition of a sentence? Let's see this. A group of words that expresses full meaning or a complete thought is called a sentence. Number one, it's a group of words. Second, it expresses full meaning or complete thought. उसे sentence कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो पूरा मीनिंग देता है, पूरा थॉट उसमें होता है, अधूरा थॉट नहीं होता। Let's see examples. He groaned and sank back in his chair. So this gives full meaning, full thought. Lie down now. This is also sentence. She muttered. This is also complete thought. In commas, these are expressions for emotions. And what news are you interested in? This is also complete thought. He would not go to the terrace. ये भी पूरा मीनिंग देता है, पूरा थॉट है इसमें। He would not go to the terrace. अब लेते हैं टाइप्स कितनी होती हैं सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन कंपाउंड सेंटेंस। What is simple sentence? A simple sentence has only one finite verb. This is very important. You must understand this. A simple sentence has only one finite verb. And now what is finite verb? Finite verb होता क्या है? और लिस्ट में दे देता हूँ और समझा भी दूंगा कि finite verb होते क्या हैं। All auxiliary verbs, जितने भी auxiliary verbs हैं यानी helping verbs हैं, सारे finite verbs होते हैं। be type, do type, have type, is, am, are, was, were, do, does, did, has, have, had, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, कैन, कुड, मे, माइट, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ऑल आर फाइनाइट वर्ब्स। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट आर आल्सो फाइनाइट वर्ब। ये सिंपल प्रेजेंट है यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आर फाइनाइट वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल डेली, सो गोज इज फाइनाइट वर्ब। I go to school daily. Go is also finite verb. The second form of verb in simple past tense, simple past tense में affirmative sentence बनाने के लिए, positive sentence बनाने के लिए हम second form use करते हैं, and this second form is also finite verb. इस साथ में ये भी देख लेते हैं। और fifth is फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब आप बनाते हैं तो फर्स्ट फॉर्म आप शुरू में यूज़ करते हो, या प्लीज़ के बाद या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है। डू इज़ फाइनाइट वर्ब, हेल्प इज़ फाइनाइट वर्ब, लेट इज़ आल्सो फाइनाइट वर्ब,
Make is also finite verb. Or let's go ahead. Types of simple sentences: affirmative, negative, interrogative, imperative और exclamatory. ये 5 टाइप यहाँ पे दी हुई है आपकी बुक में. हालांकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस और इन नेगेटिव सेंटेंस ये असर्टिव सेंटेंसेस में इंक्लूड करते हैं, बट इस बुक में आपकी सहूलियत के लिए कि असर्टिव सेंटेंस के चक्कर में न रहो, आप सीधे जान लो कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं दीज आर असर्टिव सेंटेंसेस. एग्जाम्पल इनके अब एक एक करके लेते हैं और ताकि आपको समझ आ जाए. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस. द स्पीकर मेक्स ए स्टेटमेंट इन एन अफर्मेटिव सेंटेंस. इट्स आल्सो कॉल्ड ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इन्हें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. जस्ट ए स्टेटमेंट होती है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है. जैसे ही स्पोक वेरी लिटल इन फ्रंट ऑफ द जज, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. किसी भी टेंस में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगी, सिंपल पास्ट में होगी. इन एनी टेंस यू कैन यूज दिस स्टेटमेंट एंड इट विल बी कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस. His way of teaching is very simple and clear. She always obeys her parents. So these are statements. Then negative sentence. Negative भी statement होती है, but this is negative statement. The speaker uses not or none or never. ये खास बात है. नेगेटिव बनाने के लिए आपको not यूज करना पड़ेगा, none यूज करना पड़ेगा या never यूज करना पड़ेगा. He did not speak much in front of the judge. तो डिड के बाद नॉट आया. जब आप सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हो तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनता है, नॉट बीच में आता है. ही डज नॉट टॉक मच. आई डू नॉट लाइक फ्लैटरर्स. फ्लैटरर्स कौन होते हैं? चापलूस लोग. इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं. 2 तरह से बनते हैं, ये भी बता दूंगा आपको मैं. द सेंटेंसेज इन विच द स्पीकर मेक्स क्वेश्चंस टू द लिसनर आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. ऐसे सेंटेंस जिनमें लिसनर, स्पीकर जो होता है बोलने वाला वक्ता, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस यूज करता है सुनने वाले के लिए. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. नंबर 1, यस नो क्वेश्चन. सच क्वेश्चंस बिगिन विद आइदर ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. तो यस नो क्वेश्चन जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, भले ही वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो या फिर इज, एम आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड में से कोई हो, उनसे शुरू होते हैं. जैसे कि डू ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हैव हेल्पिंग वर्ब. ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स सेम होते हैं. डू ये आर है, दीज आर ऑल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड दे एंड अप विद क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म होते हैं. तो इन दिस वे यू कैन रिकग्नाइज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस की मैंने बताई आपको, यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होते हैं. और सेकंड टाइप ये है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस की. सच क्वेश्चंस बिगिन विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स लाइक हु, हुम, हुज, विच, वेयर, वाई, व्हाट, हाउ. ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जैसे हु, हुम, हुज हैं, विच है, या फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स लाइक वेयर, वाई वगैरह वगैरह से शुरू होते हैं. What are you doing now? Who is making a noise in the class? Where is your friend right now? Whose pen is this? These are questions. These questions are made to get information from the listener. जो सुनने वाला है, सामने वाला जिसको क्वेश्चन किया जा रहा है, तो ये इस वजह से किए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन WH फैमिली वाले, ताकि आपको कुछ जानकारी मिल सके. टू गेट सम इंफॉर्मेशन यू यूज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस. फोर्थ टाइप इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं. कमांड्स होती हैं ये. द स्पीकर यूजेस ऑर्डर्स, कमांड, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. ऑर्डर, कमांड आदेश होते हैं, रिक्वेस्ट होती हैं, प्लीज से बिगिन करते हैं जिन्हें. प्रोहिबिशन डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं जिसमें आप एक किस्म से मनाही करते हो कि ये मत करो, वो मत करो. स्टॉप दिस न्यूसेंस, ये आप फर्स्ट फॉर्म से बिगिन करें. स्टॉप इज फर्स्ट फॉर्म. स्टॉप दिस न्यूसेंस. डोंट स्पीक लाउडली. डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म आई. प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म. प्लीज हेल्प मी. ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. तो इस तरह से ये आदेशात्मक वाक्य बनते हैं. फिफ्थ टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. The speaker expresses certain feelings in exclamatory sentences using exclamatory words like oh, hurrah, alas, fie,
हु, ये एक्सप्रेशंस हैं, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि ओ, अ, हुर्रा, अलास, पाई, पू वगैरह. दीज आर सडन फीलिंग्स in used in exclamatory sentences. Examples are what a lovely flower it is, what a fool you are, oh he is no more, alas the old man has died. So dear students, these were the types of simple sentence. सिंपल सेंटेंस की आपने टाइप्स देख लिए. इसके पश्चात कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस डिस्कस किए जाएंगे. फिलहाल इनकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं जो आपके पेज नंबर 13 पे है. लिटरेचर एंड लैंग्वेज बुक के पेज नंबर 13 पे है. आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग. इन सेंटेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस तरह का सेंटेंस है. टाइप बतानी है आपको सिंपल सेंटेंस की. जैसे आर यू कमिंग, तो ये किस तरह का सेंटेंस हुआ. नंबर 1, इट बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन से एंड अप हो रहा है. इंट्रोगेटिव साइन से एंड अप हो रहा है. ये जो चिन्ह है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, इससे एंड अप होने वाले सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव होते हैं. हेल्पिंग वर्ब आर है. आउच, दैट रियली हर्ट्स. जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से एंड अप होते हैं, या शुरुआत में कोई एक्सक्लेमेशन होता है, ऊ, पुहू, फाई, इस तरह का कोई अलास, वहाँ ये एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा आपको. तो वो सेंटेंस जिसमें एक्सक्लेमेशन होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. हुज बुक इज दिस, इंटरोगेटिव साइन है पीछे तो इंट्रोगेटिव है. गेट मी सम वाटर, ये इम्पेरेटिव टाइप है बिकॉज ये गेट फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है. अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू होती है तो वो स्टेटमेंट होती है. वो नेगेटिव हो सकता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस हो सकता है. नेगेटिव हो सकता है या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस हो सकता है. वो फुल स्टॉप पे एंड अप होता है. इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी फुल स्टॉप पे एंड अप होते हैं. एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव साइन पे, और इंपेरेटिव ये क्लोज द डोर इज. इनकी यही पहचान होती है, या तो प्लीज से शुरू होते हैं या डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म से या फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं. तो गेट एंड क्लोज आर फर्स्ट फॉर्म्स. So these are imperative sentences. You are adorable, तो ये subject है, फिर verb आया, this is statement, तो this is affirmative sentence. It rained heavily last night, ये भी affirmative है, it से begin है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, पैटर्न इसका. लीव मी अलोन, दिस इज फर्स्ट फॉर्म. जब फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होता है तो क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. वी वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, इट बिगिंस विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन तो सब्जेक्ट है फिर वर्ब है, दिस इज अफर्मेटिव सेंटेंस. और व्हाट डिड द टीचर टेल यू, दिस आल्सो एंड्स अप विद इंटरोगेटिव साइन, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. अब एक्सरसाइज 2 लेते हैं. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड. जो सेंटेंसेस नीचे दिए हुए हैं उनको आपको चेंज करना जैसी डायरेक्शन मिली हुई है. आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो ये सेंटेंस दिया हुआ है और डायरेक्शन क्या है, चेंज टू इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. आपको इस सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है, WH टाइप होता है तो हम उसी को वहीं रख लेते, बट दिस इज हैविंग दिस स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब है इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा. एम और फिर सब्जेक्ट आएगा. एम आई गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क. ये नेगेटिव बनाना हो तो इसमें नॉट लगेगा, बस एम के बाद नॉट लगा दो. आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. आई डू नॉट लाइक मिल्क, चेंज टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यू नीड हेल्पिंग वर्ब. सिर्फ 2 सिचुएशंस ऐसी हैं जब आपको हेल्पिंग वर्ब बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा. जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बट देर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस. गोज ये अफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. आई गो टू स्कूल डेली या ही गोज टू स्कूल डेली, तो गोज है ES लगा हुआ है तो डज आएगा. डज ही गो टू स्कूल डेली. आई गो टू स्कूल डेली, अगर गो जो फर्स्ट फॉर्म है SEIS नहीं है तो डू आएगा. डू आई गो टू स्कूल डेली. तो इसी तरह सेकंड फॉर्म में ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, तो इंट्रोगेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो, ही डिड नॉट गो टू स्कूल डेली या डिड ही गो टू स्कूल डेली. सेकंड फॉर्म का इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हेल्पिंग वर्ब क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस में, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म. डिड होता है फर्स्ट फॉर्म यूज की
जाती है। तो डू आई नॉट लाइक मिल्क, डू को बाहर निकालो, देन सब्जेक्ट, और नॉट लाइक मिल्क ये तो वहीं रहेगा। थर्ड सेंटेंस इज डू यू ईट बनानाज एवरीडे। तो चेंज टू अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे इंटरोगेटिव साइन आप लगा लेना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना। तो ये डू डज खत्म हो जाएंगे क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम डू या डज नहीं यूज करते, या तो एस लगेगा, नहीं लगेगा। यू सब्जेक्ट है तो एस इज नॉट रिक्वायर्ड। यू ईट बनानास एवरीडे। इट्स अ ब्यूटीफुल साइट, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी बनाने के लिए व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, इस तरह से बनते। वॉक स्लोली, अफर्मेटिव बनाना आपको, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस था। यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली। वॉक स्लोली आपको कोई सलाह दे रहा है, नेक सलाह दे रहा है, तो एडवाइज्ड में चेंज कर सकते हो। यू आर एडवाइज टू वॉक स्लोली। शी इज समटाइम्स एंग्री, चेंज टू इंट्रोगेटिव। तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालिए, इज बाहर आएगा। इज शी एनी टाइम एंग्री, समटाइम्स का एनी टाइम चेंज हो जाएगी। इज शी एनी टाइम एंग्री। द टू सिस्टर्स आर नॉट लाइक ईच अदर, चेंज टू अफर्मेटिव। वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, चेंज टू अफर्मेटिव। मीनिंग क्या है वाई वेस्ट, ये रेटरिक टाइप का सेंटेंस है। वाई वेस्ट टाइम वॉचिंग टीवी, टेलीविजन देखने में समय नष्ट क्यों किया जाए। तो मीनिंग क्या हुआ है, इट्स यूजलेस टू वेस्ट टाइम वॉचिंग। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन टाइप के सेंटेंसेस हैं। आपको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप चेंज करें। दिस कम्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। वी वन द गेम, चेंज टू एक्सक्लेमेटरी। अगर हैव होता है तो यहाँ हैव में ले जाते हैं, उसी टेंस में रखना है पूरा। वी वन द गेम। शी इज टॉलर देन आई, चेंज टू इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। वह मेरे से लंबी है, टॉलर है। तो क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इज शी टॉलर देन आई। तो इन दिस वे दिस वीडियो लेक्चर एंड्स अप हियर। 12 and 13 पेज की जो भी ग्रामर थी हमने एंड अप की। ये सेकंड सेमेस्टर की ग्रामर है, और फिलहाल तो इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में कुछ एक्सरसाइजेस और हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। टिल देन हैव ए नाइस डे, थैंक यू।